नाम को पुकारो जो हर एक नाम में श्रेष्ठ है। Call out to the name that is above every other name. ये मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए This is my prayer for each one of you. कि अगर कोई भी यहाँ पर आया है जिसकी जो वॉक है परमेश्वर के साथ, अगर आप गुनगुने पड़ गए, अगर आप ठंडे पड़ गए, तो आज आत्मा की वो धधकती हुई आग लेकर आप यहाँ से जा रहे If there is anyone here who has become lukewarm in their walk with the Lord, you're receiving that fire of the Lord today. हो। मैं आपको बता रहा हूँ, वे जो मसीह जो आग से धधकते हैं, दुष्ट आत्माएं, बुरी आदतें, ये सारी चीजें वो आग नाश कर देता है। I'm telling you, the believers that burn with the fire of the Holy Spirit, this fire destroys every evil thing against them. तो उस परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं केवल सेलिब्रेट करने नहीं, मैं अपने आप को डेडिकेट करने भी यहाँ पर आया हूँ। So tell the Lord and say, I have not just come here to celebrate, but I have come to dedicate my life to you. आज एक नया चैप्टर शुरू हुआ है आपके जीवन का। Today a new chapter has begun in your life. पुराना चैप्टर जैसा भी हो वो बीत चुका है। Whatever the old chapter was like, it is over. आज आप डिसाइड करो कि इस साल का चैप्टर आपका कैसा होगा। Today you decide what this new chapter will look like in this year. क्या आप एक जयवंत योद्धा की तरह जियोगे? Will you live like a warrior, a champion, victorious champion? परमेश्वर ने आपको अपनी आत्मा की तलवार दी है। God has given you the sword of His Spirit. परमेश्वर ने आपको वो कलम दी है जो आत्मा की है। एक ग्लोरियस, एक बेस्ट कहानी लिखो अपनी यीशु के नाम में। God has given you the pen of His Spirit so you can write the best and the most glorious story for your life. आज मीडियोक्रिटी का वो चोगा फेंक दो आज। Throw away the robe of mediocrity from your life today. परमेश्वर ने जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया, पिता ने उसको बेस्ट रोब दिया, बेस्ट। When the prodigal son came back, the father gave him the best robe. और उस टाइम बेस्ट रोब दिया And he gave him the best robe at जब वो that अपने time. सबसे वर्स्ट टाइम में था। When the son was at his worst at the time. परवाह नहीं आज आप कैसा जीवन जी रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, पिता आपको बेस्ट देना चाहता है। Does not matter what kind of a life you're living today, God, the Father wants to give you the best. मगर साथ में वो चाहता है But along with that, He wants कि आप एक बेटे की तरह उसके बोझ को समझो। that you will take His burden like a son. आज एक बाइबल कहती है कि उसकी करुणा, His mercies are new every morning. बाइबल कहती है उसकी करुणा हर सुबह नई सी होती है हमारे जीवन पर। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछला साल जैसा भी हो भूल जाओ उसको। I'm telling you, whatever the last year was like, you forget about it. आज अभी वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए अपना मुंह खोलो और भविष्यवाणी करो कैसा साल आप चाहते हो। Before we go into the word, I want you to open your mouth and prophesy what kind of a year do you want. परमेश्वर का वचन कहता है, जिस बात की घोषणा तू करेगा मैं तेरे जीवन में उसको स्थापित कर दूंगा। The word of God says, whatever you shall decree, I will establish in your life. अपना मुंह खोलो इस समय। Open your mouth. Come on, भविष्यवाणी करो अपने जीवन में। Prophesy over your life. भविष्यवाणी करो अपने बच्चों के ऊपर। Prophesy over your children. भविष्यवाणी करो अपने स्वास्थ्य के ऊपर। Prophesy over your health. भविष्यवाणी करो अपने बिजनेस के ऊपर। Prophesy over your business. अपना मुंह खोलो इस समय। Open your mouth. पूरी आत्मा और सच्चाई से, In spirit and truth. उसकी आत्मा की हुजूरी में In the presence of His Spirit. डिक्लेयर करो इस समय। Declare. Zabraga ta 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 rababa, labraha dana mazaka ta 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 rabara lagada, le zakatana mara lagade ne mere lege, rogadina mazaka ta 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 rabalaba. Oh, hey, so braga baba 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 baba. Declare करो, declare करो, declare करो,
डिक्लेयर करो, मुंह खोलो, घोषणा करो, घोषणा करो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं तू हर एक की जीभ को छू ले इस समय। तेरा सामर्थ हर एक की जीभ को छू ले इस समय। Holy Spirit, I pray your power would touch everyone's tongue right now. इनके मुंह से परमेश्वर तू बुलवा जो तू चाहता है इनके जीवन में होना। That from their mouth you will speak what you want to do in their lives. तूने यिजकियल को बोला, यिजकियल भविष्यवाणी कर सूखी हड्डियों के ऊपर। You said to Ezekiel, prophesy over the dry bones. भविष्यवाणी करो अपने हर जीवन के क्षेत्र में जो जहाँ सूखी हड्डियां हैं। Prophesy over every area of your life where there are dry bones. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में In घोषणा Jesus' करो, name. घोषणा करो। Declare. से बाबा हाथारा बाबा रगा बादाना मादे के देने बेरे के दाना मामा मामा रगा दादा बादा दादा 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 उसका सामर्थ्य यहाँ पर बह रहा है यीशु के नाम में। Power is flowing in this place. रिसीव करो इस समय Receive it right now. in the name of Jesus। यीशु के नाम में। Oh, le braga dana mama mama rega dina masatana। Oh, la braga dana mama mama la braga dana masaka dana barana barana। जब उसके लोग परमेश्वर को प्रेज करते हैं, When his people praise him, जब उसके लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं, when his people glorify him, बाइबल कहती है शैतान का मुंह बंद किया जाता है। the Bible says the mouth of the devil मैं is shut. घोषणा करता हूँ शैतान का मुंह बंद किया जाता है आपके और आपके परिवार के विरोध में यीशु के नाम में। I declare that the mouth of the devil is shut against you and your family in Jesus' name. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो शैतान का, उस सांप का गंदा सर जो आपके विरोध में उठता है आज कुचला जाता है यीशु के नाम में। The head of that filthy serpent that rises against you is crushed today in Jesus' name. हालेलुया। हर एक वेदी जो आपके विरोध में बोलती है वो वेदी नाश होती है पवित्र आत्मा की आग से। Every altar that speaks against you is destroyed by the fire of the Holy Spirit. उसकी सामर्थ यहाँ पर है। His power is present here. खुदावन तुम महान परमेश्वर है। Lord God, you are great and all. खुदावन तुम महान परमेश्वर है। You are the Almighty God. Father, in the name of Jesus, I invoke the power in the name of Jesus. पिता यीशु के नाम में जो सामर्थ है मैं उसको इनके जीवन पर लागू करता हूँ यीशु के नाम में। In the name of Jesus, यीशु के नाम में let the Most High power speak for them in the name of Jesus. सर्वशक्तिमान का सामर्थ्य इनकी जिंदगी के लिए बोले यीशु के नाम में। Father, I plead the blood of Jesus. पिता मैं यीशु के लहू की पुकार लगाता हूँ यीशु मसीह के नाम में। in the name of Jesus. इस घर की कोई भी बेटी बांझ नहीं होगी यीशु के नाम में। No daughter of this house shall be barren in Jesus' name. कोई भी इस कलीसिया का मेंबर एक्सीडेंट में नहीं मरेगा यीशु के नाम में। No member of this church will die in any kind of accident in Jesus' name. प्रभु मैं घोषणा करता हूँ डिवाइन प्रोटेक्शन तेरे लोगों के ऊपर। Lord, I decree divine protection over your people. तेरे वचन भजन संहिता 91 के ऊपर हम खड़े होते हैं We परमेश्वर। stand on your word in Psalm 91, Lord. घोषणा करो, अपना मुंह खोलो, बोलो मेरे बगल में 1000, मेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे मगर वो मेरे और मेरे परिवार के निकट भी ना आ पाएगा यीशु के नाम में। Open your mouth and declare 1,000 will fall by my side and 10,000 by my right hand, but it will not come near me and my family in Jesus' name. बाइबल कहती है कोई भी हथियार जो तेरे विरोध में रचे गए हैं वो सफल नहीं होंगे। The Bible says no weapon shall prosper against you. मगर उसके बाद वचन एक बात कहता है। But after that the word मैं आज says आपको एक बात बताना चाहता हूँ जिससे पहले मैं वचन में जाऊं। Before I go into the word, I want to tell you something. If you read the Bible from cover to cover, अगर आप बाइबल को पहले से आखिरी पन्ने तक पढ़ोगे,
10% of Bible, God has manifested His sovereignty. बाइबल के 10% भाग में ही परमेश्वर ने अपनी स्वेच्छा के अनुसार किया जो किया। जिसका मतलब है कि जो परमेश्वर ने कहा है वो होगा। That whatever God has said will happen. वो 10% है, ध्यान से सुनो। That is 10%. बाकी 90% आपकी पार्टनरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। The rest 90% depends on your partnership. और यही मसीह लोग नहीं समझते। And this is what believers don't understand. केवल अगर उसमें लिखा है अपने आप पूरा नहीं होगा। Only because it is written, it will not happen on its own. जब तक वो इस किताब के अंदर है वो पूरा नहीं होगा अपने आप। Till the time it is in this book, it will not happen on its own. आपको उसको अपने दिल में डालना पड़ेगा और मुंह के द्वारा उसकी घोषणा करनी पड़ेगी। You will have to put it in your heart and you'll have to speak it out of your mouth. मैंने लास्ट संडे भी आपको कहा था, यहोवा आपके लिए वो है जो आप कहते हो कि वो है। I said this last Sunday also. Jehovah is for you what you say He is for you. यीशु आपके लिए वो है जो आप कहते हो वो है। Jesus becomes for you what you say He is for you. दाऊद कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। David says, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. वो कहता है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। He says, for the Lord is my shepherd, I shall not be in want. आप आज क्या कहते हो? यहोवा कौन है आपके लिए? What do you say about the Lord today? Who is the Lord आज to you? बोलो उसे, Say to Him today, प्रभु Lord, तू मेरी रक्षा करने वाला है, You are my protector. तू मेरा उद्धार करता है, You are my तू savior. मुझे चंगा करने वाला है, You are my healer. तू मुझे छुड़ाने वाला है, You are my deliverer. तू मेरा परमेश्वर है, You are my तू God. मेरा पिता है, You are my father. तू मेरा बल है, You are my तू strength. मेरा निज भाग You है, are my own तू portion. मेरा सब कुछ है परमेश्वर। You are my all in all, Lord. मुंह खोलो और बोलो से आज, Open your mouth and say it to Him. जो आप कहते हो वो आपके लिए हो जाता है। What you say of Him, He becomes for you. बोलो आज, मुंह खोलो। Today, say it. Open your mouth. पार्टनरशिप करना सीखो परमेश्वर के साथ। Learn to partner with the Lord. पार्टनरशिप करना सीखो। परमेश्वर ढूंढ रहा है पृथ्वी में उन पार्टनर्स को The Lord is looking for those partners on the earth जिनके द्वारा वो अपनी इच्छा को पूरी कर सके। through whom He can fulfill His will on the earth. कोई एक्सीडेंट होना उसकी इच्छा नहीं है, No accident is His कोई will. व्यक्ति कैंसर में मरना उसकी इच्छा नहीं है, It is not His will that anyone dies. मगर in उसकी cancer. इच्छा अपने आप पूरी नहीं होती। But His will does not happen on its own. उसे एक इंसान चाहिए जो उसके साथ सहमत हो सके। He needs a man who can agree with Him. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको घोषणा करनी पड़ेगी, You will have to declare. इस वचन को मुंह में डालना पड़ेगा। You will have to put this word in your mouth. यूहन्ना प्रेरित ने रेवलेशन में प्रभु यीशु मसीह को देखा कि वो घोड़े के ऊपर सवार है और उसके मुंह से दो धारी तलवार निकल रही। कहां से निकल रही है? मुंह से। John the apostle saw the Lord in Revelation and he saw that a two-edged sword is coming out of His mouth. To execute judgment. ताकि वो न्याय की घोषणा। Do you know you can execute judgment on demonic principalities and demonic spirits? क्या आप जानते हैं आप दुष्ट की ताकतों पर, दुष्ट की आत्माओं पर न्याय कर सकते हैं? You can shut the mouth of Satan. आप शैतान के मुंह को बंद कर सकते हैं। You can limit Satan in your life, आप शैतान को अपने जीवन के विरुद्ध आने से that he सीमित कर will not सकते हैं raise his ugly head against you and your family. और वो अपना भद्दा सर आपके परिवार के विरुद्ध नहीं उठा पाएगा। Jesus has given you authority. यीशु ने आपको अधिकार दिया है। His word says in Luke 10:19, behold, I have given you power and authority to trample on snakes and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means harm you. लूका 10:19 में उसका वचन कहता है, देख मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुझे कोई भी हानि नहीं होगी। He didn't say, I will trample snake and scorpions for you. उसने ये नहीं कहा मैं तेरे लिए सांप बिच्छू रौंदूंगा। He said, you will do it, उसने कहा तुम करोगे, but I give you my authority. इसीलिए मैं तुम्हें अपना अधिकार देता हूँ। But what will happen if you will not use your authority? लेकिन क्या होगा अगर आप अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करोगे तो? Devil will be loose in your life. शैतान आपकी जिंदगी में खुलेआम घूमेगा।
we have to take a rightful place. हमें अपना सही स्थान लेना जरूरी है. अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हो, If you are in the Lord Jesus Christ, तो आपके पास अधिकार है शैतान की सारी ताकत के ऊपर. then you have authority over all the power of the devil. मगर आपको उस अधिकार को इस्तेमाल करना पड़ेगा. But you will have to use that authority. आपको अपना मुंह खोलकर सबसे पहली चीज आपको मानना पड़ेगा कि आपके पास अधिकार है. First of all, you'll have to believe and agree that you have authority. ये अधिकार केवल पास्टर्स और प्रीचर्स के पास नहीं है. This authority is not only for pastors and ये preachers. परमेश्वर के हर एक बेटे और बेटी के पास ये अधिकार दिया गया है. This authority has been given to every son and every daughter of God. अगर आप मसीह में हो, If you are in Christ, तो आपको अधिकार दिया गया है शैतान की हर एक गंदी ताकत के ऊपर. then you have been given authority over every wicked power of the enemy. Amen. मैं आपको बता रहा हूं, हमारे देश ने आज तक ईसाई धर्म देखा है. I'm telling you, our country has only seen the religion of Christianity till date. हमारे देश ने एक ग्लोरियस तेजों में कलीसिया नहीं देखी, मगर परमेश्वर ऐसे विश्वासियों को खड़ा कर रहा है जो उसके तेज से चमकने वाले हैं. वो ऐसे विश्वासियों को खड़ा कर रहा है जो उसके अधिकार से भरे हुए हैं. वो ऐसे विश्वासियों को खड़ा कर रहा है जो दुनिया को हिलाने वाले होंगे यीशु के नाम में. Our country is yet to see a glorious church. The Lord is raising such believers who are filled with His glory, filled with His victory, and will shake the nations for His name. Amen. मैं आपको बता रहा हूँ, I'm telling you, परमेश्वर के पास केवल एक जगह है आपके लिए, God has only one place for you, और वो जगह है and that at the is top. at the top. At the top. सबसे ऊंची जगह पे, At the top. सबसे ऊंचाई पे. हालेलुया. ये देश यीशु की महिमा को देखेगा. This nation will witness the glory of Jesus. हर एक पॉलिटिकल पार्टी यीशु मसीह की महिमा को देखेगी. Every political party would see the glory of Jesus. उसकी कलीसिया की बढ़ती का कोई अंत नहीं है. उसके राज्य की बढ़ती का कोई अंत नहीं है यीशु के नाम में. There is no end to the growth of His church. There is no end to the growth of His kingdom. Amen. हम ईसाई धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, हमें ईसाईयत को नहीं बढ़ाना. We are not preaching the religion of Christianity. We don't have to expand the religion of Christianity. नहीं, हम उसके राज्य के प्रतिनिधि हैं. We are the representative of His kingdom. We are the ambassadors of heaven. हम स्वर्ग के राजदूत हैं. हम स्वर्ग के राजदूत हैं. We are the ambassadors of heaven. हालेलुया. अपने हाथों को उठाओ. Lift up your hands. मैं ये घोषणा करता हूं कि ये हाथ डिलीवरर के, छुड़ाने वालों के हाथ हैं, छुटकारा देने वालों के हाथ हैं यीशु के नाम में. I decree these are the hands of deliverers of those who set free in the name of Jesus. मैं घोषणा करता हूं ये हाथ चंगा करने वाले के हाथ हैं यीशु के नाम में. I declare these are the hands of healers in Jesus' name. हालेलुया. सबसे पहली चीज, इससे पहले मैं वचन में जाऊं, मैं आपको सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए एक जयवंत मसीह की तरह जीने के लिए, सबसे पहली चीज, The first thing you need to live as a victorious believer. आप बैठ सकते हैं, You can be seated. बस किसी के ऊपर मत बैठना. हालेलुया.